Good morning, students. I hope all you are fine and well, and your days are going on very well. So, today I am going to discuss with you chapter number 8. This is for ninth class. Reach for the top. Okay, reach for the top means ऊंचाई की ओर पहुंचना in Hindi. This is part 1 about Santosh Yadav. As I told you, this is for 9th class, chapter number 8, as per CBSE board and RBSE English. So let us discuss this chapter. So before explaining of this chapter and before my narration, so I would like to request you, if yet you haven't subscribed my channel, please you subscribe and hit the bell icon that you can get all notification of my uploading videos. So okay, here it is a story about Santosh Yadav. Okay, Santosh Yadav was born in Haryana in such a society. संतोष यादव का जन्म जो है हरियाणा में ऐसे एक सोसाइटी में होता है where the people were thinking the birth of a boy is a blessing for them, जहाँ पर लोग ऐसा सोचते थे कि लड़का का जो जन्म है वहाँ क्या है, उनके लिए ब्लेसिंग है. The birth of the boy is blessing, but anyhow they were not thinking the girl's birth is curse, but they were not welcoming to the girls. किसी भी तरह से वो ये नहीं सोचते थे कि गर्ल्स का जो जन्म है वो कोई श्राप है, लेकिन वो वेलकम भी नहीं करते थे. लड़की का जन्म को वो वेलकम भी नहीं करते थे. तो इसी समय पर क्या होता है कि यहाँ पे संतोष यादव का मदर जो है वो प्रेगनेंसी हालत में होती है ना. द मदर ऑफ संतोष यादव, शी वॉज कैरिंग, ओके, शी वॉज कैरिंग ऑलमोस्ट, शी हैड 5 सन एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट अनदर चाइल्ड, है ना. उसके 5 बच्चे थे और दूसरा बच्चा उसको प्राप्त करने के लिए वो अभी क्या कर रही थी कि मतलब इच्छा प्रकट कर रही थी, मतलब होने वाला था. सो इन दिस टाइम ए सेंट holy man, he entered to the village and he blessed her. Okay, he blessed her and said that you may have a male child. But in between the grandmother was there and lot of people were there, and the saint was told, the holy man was told that so they are not willing to get a male child. The holy man amazed, and the people those who are there, they were also amazed. What kind of word is this? जैसे गांव में एक मतलब एक बाबा वहाँ पे घूमने आते हैं, तो जैसे संतोष का माँ को वो देखते हैं, वो केयरिंग स्टेज में है, और तब वो उसको आशीर्वाद देते हैं. आशीर्वाद दे कर कहते हैं कि तुम्हें एक लड़का हो, लेकिन वहाँ पे ग्रैंड मदर भी वहाँ खड़ी हुई होती है, और साथ ही साथ अदर लोग भी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं. तो तभी उनको कहा जाता है, यानी वो सेंट को कहा जाता है कि वो संत जी को कहा जाता है कि हमें लड़का नहीं चाहिए. तो सभी ताज्जुब करते, क्योंकि ये गांव, ये सोसाइटी हमेशा लड़कों को ही प्रायोरिटी देता है, लड़कियों को नहीं देता है. लड़की का जन्म के लिए वो कोई चाहते नहीं. इस तरह सभी कैसे इस प्रकार का शब्द को उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये उनके लिए एक थिंकिंग वाली बात थी, ये उनके लिए एक सोचने वाली बात थी. सच वे आफ्टर हैविंग द डे एंड आफ्टर सम डेज एंड संतोष मदर gave birth to Santosh, and she was the 6th child of this family. ओके, कुछ दिनों के बाद संतोष का जन्म होता है और उसका नाम ही संतोष दिया जाता है. संतोष का मतलब कंटेंटमेंट यानी संतुष्ट. ओके, संतोष का मतलब ही संतुष्टि है. तो इस प्रकार वो नाम दी जाती है. नाम देने के बाद फिर बात वही होता है कि 5 लड़के होते हैं, उसके बाद लड़की जन्म होती है,
और लड़के जन्म होने के बाद जाहिर सी बात थोड़ा खुश होते हैं, लेकिन लड़की को क्या किया उन्होंने, अपने रीति रिवाज के अनुसार ही उसको रखा है। Okay, they were not willing to get a male child. They were expecting to get a female child, but they kept her according to their tradition. Is the man of very rich person, the father of Santosh. He is a rich person, and no problem was there, and he had very good money, and he supposed to send her to Delhi for Haryana for her higher study, but he kept her in that village school, and he sent to his all boys, to Delhi for higher study, and she was the girl one who was studying in the government school, and she was living with tradition and old custom and old fashion, but she doesn't like to live as such old custom and old fashion, while the village girls, they were wearing the traditional cloth. At the same time he was disobeying that, and she was wearing shorts and t-shirt, etc. She doesn't want to live like the village girl. She wanted to live just like a मॉडर्न गर्ल। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसके पैदा होती है और होने के बाद उसको वही गांव के लड़कियों के साथ, लड़कियों के परंपरा के अनुसार उसको रखा जाता है। पापा के पास पैसे की कमी नहीं थी, पापा चाहते तो उस लड़की को शहर भेजते पढ़ाई के लिए, उसको गांव की सरकारी स्कूल में डाल रखे हैं, जबकि लड़के जो होते हैं वो लड़कों को क्या करते हैं कि वो बाहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। संतोष इस बात को लेकर के असंतुष्ट व्यक्त करती है कि वो मतलब उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने का जुनून है, लेकिन उसको बाहर नहीं भेजा जाता है, फिर भी वो अपनी इच्छा को दबाए रखती है। वक्त आने पर उसको कहूँगी खोलूँगी, इस प्रकार वो सोचती है। गांव के जो लड़कियां होती हैं वो गांव के रूप रंग में ही रहते हैं, गांव के वेशभूषा में ही रहते हैं, गांव के ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होता है वही पहनती है। लेकिन उस जगह पर जब संतोष की बात आती है तो संतोष तो शॉर्ट्स, टी शर्ट वगैरह ये सब भी पहनती है, मतलब एक मॉडर्न लड़की की तरह अपने जीवन यापन करना वो चाहती है। वक्त का इंतजार करती है। एक समय आता है जब वो 16 साल की होती है। When there was a time when she becomes 16 years old, most of the village girls, they were getting married when they came to 16 years old. अधिकतर लड़कियां जो है जब वो 16 years old में आते हैं तब उनको शादी करवा दिया जाता है। So she was also forced to do same thing. उसको भी यही काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है शादी तो बात की बात है। She refused for the marriage and she says that marriage is last option for her. She wants to study more. शादी तो बात की बात है, पहले उसको पढ़ाई करना है, अपने एजुकेशन को लेना है, वो ये सभी कहती है। और उसके बाद वो बिना कुछ पूछे ही वो क्या कर देती है, दिल्ली में किसी स्कूल में एनरोल कर लेती है। ओके, शी एनरोल्ड समवेयर इन दिल्ली इन a school, and she wants to study there, and she wanted to go there, and finally what happened there, her parents, they disagree and they refused to give her fees, and she told them, if you don't give fees, so no problem, I will work there part time and I will earn some money and I will pay my school fees. वो कहती है कि तुम मुझे फीस नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा और पढ़ लूँगी और दिल्ली में पार्ट टाइम कुछ वर्क कर लूँगी, कुछ धन कमा लूँगी और कमाने के बाद उसको मैं क्या करूँगी, लोगों को दे दूँगी, मेरे स्कूल के फीस दे दूँगी। तो ये बात सुनने के बाद फिर पेरेंट्स जो है तैयार हो जाते हैं, नहीं हम देंगे। तो वहाँ उसके हाई स्कूल की पढ़ाई होती है और हाई स्कूल की पढ़ाई होने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर ये जयपुर आ जाती है और महारानी कॉलेज में पढ़ती है। और महारानी कॉलेज में पढ़ने के बाद एक हॉस्टल में रहती है वो, ठीक है ना, एक हॉस्टल में रहती है और वो हॉस्टल जो है कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहती है। और वो हॉस्टल जो है
अरावली माउंटेन को सामना करता है, मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो हियर वी मे सी दैट सो आफ्टर completing her study, after completing her study in Delhi, and she came to Jaipur for her higher study, and she joined in Maharani College, and she was staying there in Kasturiba hostel, and she was watching that the face of the hostel is Aravali mountain, and she was watching there is something training, or there is some people they are mountaining, and one day she went there, and just to see wanted to on a mountain. Okay, she wanted to mountaining, and somebody encouraged, and she started to learn something, and after that way she got something interest for mountaining. एक दिन वो क्या करती है कि अरावली माउंटेन जो सामने ही होता है, तो वहाँ पर कुछ मतलब पहाड़ चढ़ने वाले जो शिक्षा को लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी जाती है और वहाँ पे उनसे सलाह मशवरा करती है, वो भी लोग मानते हैं, और उसके बाद वो थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रैक्टिस करती है, और प्रैक्टिस करने के बाद उसके मन में एक इच्छा होता है कि वो क्या करेगी कि वो माउंटेनिंग करना यानी पहाड़ में चढ़ना वो सीखेगी। और उस हिसाब से आपने अपने मन में ठान लिया कि एक इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट का नाम है उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है कि उनको मतलब क्या करता है, ट्रेनिंग देता है पहाड़ चढ़ने के लिए। So as she was studying in Maharani College, she thought about an institution. That name of the institution is what is this? The institution name that just I was telling you. The name of the institute is Uttarakashi Nehru Institute. That institute was teaching how to climb the mountain. वो इंस्टीट्यूट उनको ये सिखा रहा था कि कैसे माउंटेनर बनते हैं, कैसे माउंटेन में चढ़ते हैं। जस्ट ओके, सो अभी क्या होता है कि अप्रैल के मंथ में ही 5 तारीख तक उसका एकेडमिक ईयर ख़त्म हो जाना चाहिए था जयपुर में। ओके, हर एकेडमिक ईयर सपोज टू बी एंड मंथ ऑफ अक्टूबर, बट समहाउ इट गॉट लेट। लेकिन किसी भी तरह से ये लेट हो जाता है, और लेट होने के कारण फिर ये चलते चलते उसको 20 मई तक उसको वहाँ पे एडमिशन लेना होता है ना। उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में उसको लेना होता है, और लेना था, और यहाँ पे 19 को उसका एकेडमिक ईयर पूरा होता है, छुट्टी होता है, और घर पे वो चिट्ठी लिख देती है कि वो उनको बिना पूछे उसने डिसीजन ले लिया, उत्तरकाशी नाम के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया, और उसके चलते वो अभी घर छुट्टी मनाने नहीं आ रही है, और वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रही है। ओके, शी रोट अ लेटर दैट without their permission, without asking them, she enrolled in Uttarkashi Institute that for learning of mountaining. She said all these things, she wrote all these things, and now she went there and she started to learn. Okay, she started to learn, and she learned fully. And finally she went up to the Mount Everest. Almost 2 times she went there. That was her achievement. That was her successfulness. वो जाकर के वहाँ ट्रेनिंग लेती है, और ट्रेनिंग लेने के दरमियान कई सारे घटना होता है। वो सारे बातें मैं आपको कहना नहीं कह पाऊँगा, आप खुद रीडिंग करें लेसन को। तो वो जैसे वहाँ पे पहुँचती है, और ट्रेनिंग लेती है, ट्रेनिंग लेने के बाद वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ती है, और चढ़ने के बाद भारत का तो झंडा है उसको गाड़ देती है वहाँ पे। और ऐसा होता है कि वो ऐसे सोसाइटी से आई थी जो सोसाइटी लड़की को पसंद नहीं करते थे, जो सोसाइटी लड़कियों को नहीं मानते थे। द सोसाइटी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गर्ल चाइल्ड, स्पेशली फीमेल चाइल्ड। ओके, बट सी हियर फ्रॉम दैट सोसाइटी ए गर्ल कम्स, एंड 2 times शी क्लाइंब टू द माउंट एवरेस्ट। दोनों टाइम वो क्या कर चुके हैं, माउंट एवरेस्ट में चढ़ चुके हैं। तो
कभी कभी हम वेलकम करें या ना करें, लेकिन हौसला है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मे गॉड ब्लेस यू। अगर कोई भी नए इस वीडियो को देखता है तो कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू।